going to start our new lesson, chapter number 14 in grammar. Okay, so what is the page number? See, take out your grammar workbook, children. Page number 66. Okay, so see, what is the chapter? Asking question. So हमको क्या सीखना है कि questions जो हम पूछते हैं, we ask question that starts from which word. Okay, so see here on the page 66 we have learned that who, whose, what, where, which and when are question words. ये जो सारे हैं who, whose, what, where, which, when and are question words. ये सारे जो है question words है. Why they are known as question words? Because when we want to ask the questions, at that time we use these all words for asking the questions. Okay, clear up till here? Now see here in the yellow box, what is it? First number is who. अब who कब use होता है हमको वो देखना है. Okay, see now children, see here who कब use करते हैं हम? Who is used for to find out the identity of a person. किसके लिए use होता है to who to find out identity of person. ठीक है, मीन्स हमको अगर किसी इंसान के बारे में जानना है, उसकी आइडेंटिटी जाननी है, तो हम क्या यूज करते हैं? who. फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर फ्रेंड व्हेन यू डोंट नो एनीवन, कोई स्ट्रेंजर है तो तुम उसको क्या बोलोगे? who are you. तुमको उसके बारे में जानना होता है. yes, you want to know the identity of the person, so at that time what you use? You use who. Understood? Like this we will make. Now next is what. ठीक है, so what किसके लिए यूज होता है? What is used to find out something more about a person or a thing. किसके लिए यूज होता है? Want. अभी फॉर एग्जाम्पल तुमको किसी के बारे में जानना है, बट अगर तुम उस इंसान को पहचानते हो और तुमको ज्यादा जानकारी, जैसे कि कोई एक बिल्डिंग है और कोई एक बिजनेस चल रहा है. ओके, तो उसका ओनर कौन है? We have to know about all the business, right? So when we what we will use? We'll use what. जैसे कि हमको किसी इंसान के बारे में या किसी चीज के बारे में हमको ज्यादा जानकारी चाहिए होती है, at that time what we use? We use what. Understood? Next is which. Which is used for people and object. Which किसके लिए होता है? किसी इंसान या फिर किसी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज. Which is used for people और ऑब्जेक्ट. ओके, तो which कब यूज करते हैं हम? which book, फॉर एग्जाम्पल which book is this. ओके, सो हम which किसके लिए यूज किया? कोई बुक के लिए, किसी थिंग या फिर किसी इंसान के लिए. अंडरस्टूड? लाइक दिस. नेक्स्ट इज whose. whose है नेक्स्ट, तो whose कब यूज होता है? whose is used to find out the identity of the owner of a thing. तो whose कब यूज होता है? जब हमको किसी चीज के ओनर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक, तो ये बुक किसकी है? whose book is this. हम ऐसा पूछते हैं ना, तो हमको क्या पता चलेगा कि वो बुक किसकी है? मीन्स द ओनर ऑफ द थिंग. जब हमको वो चीज जाननी है तो हम क्या यूज करते हैं? whose. Understood? Like this we will make. Next is when. When is a question word used to indicate time. when कब यूज होता है? टाइम जानने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तुमको एक एग्जाम्पल है, when is the train arriving. ओके, तो ट्रेन कब आने वाली है, उस चीज का हमको टाइम जानना है. yes or no? so at that time what we use when. clear? next last number is where. so where is a question word used to find out more about a place. ओके, तो where हम कब यूज करते हैं? जब हमको किसी प्लेस के बारे में जानना होता है. we want to know about something place or some other things. clear up till here? okay, now see next here we are moving further with the page number 67. यहाँ पे क्या है? fill in the blanks है with the correct question word. हमको यहाँ पे question words यूज करने हैं. जैसे यहाँ पे question words हैं, वो हमको यहाँ पे proper sentence में यूज करने हैं. okay, so what is the first number? blank is the train arriving. so हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? first number हमारा क्या है? when. okay, when is the train arriving. understood? हमने क्यों यहाँ पे when यूज किया? क्योंकि हमको जानना है कि ट्रेन कब आएगी. we want to know the time of the train. yes, so we have used here when. clear? now see next second number. blank is that girl. so blank is that girl. तो हमको क्या जानना है कि वो लड़की who's that girl. yes, तो हम क्या यूज करेंगे?
पर्सन, जब हमको पर्सन की आइडेंटिटी जाननी होती है, यस, सो हु इज दैट गर्ल, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, ब्लैंक इज द डॉग डूइंग ऑन द बेड। तो अब क्या है यहाँ पे, ब्लैंक इज द डॉग डूइंग ऑन द बेड, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट। क्यों हमने यहाँ पे व्हाट यूज किया चिल्ड्रन, व्हाई वी यूज व्हाट, व्हाट इज यूज टू फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में, और एनिमल्स और व्हाटएवर, हमको किसी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो दैट टाइम वी यूज व्हाट। तो यहाँ पे क्या है, सी रीड इट, व्हाट इज द डॉग डूइंग ऑन द बेड, अंडरस्टूड। नाउ सी फोर्थ नंबर, ब्लैंक हाउस इज द ऑन रेस कोर्स रोड। सो हमको क्या जानना है, whose, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, whose house is on the race course road, understood। Now see fifth number, blank is the best flower decoration, so हम क्या लिखेंगे, which is the best flower decoration, which किसके लिए यूज होता है, which is used for people और ऑब्जेक्ट, पीपल होता है कोई इंसान या तो फिर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, वी यूज विच एट दैट टाइम, ओके। नाउ सी सिक्स नंबर, ब्लैंक आर दे गोइंग सो लेट एट नाइट, सो व्हाट वी विल यूज, व्हाई, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, व्हाई आर दे गोइंग सो लेट एट नाइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ब्लैंक हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर लंच, सो हमको क्या जानना है कि लंच में क्या है, व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर द लंच, सो व्हाट वी विल राइट, we'll write what, understood। Now see next, 8 number, blank did you find out your purse was missing, तो यहाँ पे हमको क्या जानना है, again we have to find out the time, that when was the purse missing, yes, so हम क्या लिखेंगे, when did you find out your purse was missing, understood। So we have to again find out your time, so that's why we have written here when, okay children, clear up till here। Now see next 9th number, blank child is playing on the road, so हम क्या लिखेंगे, whose child, okay, clear up till here। अब देखो नीचे क्या है, next exercise it is circle the correct question words given in the brackets, okay, जो brackets दिए हुए we have to find out which is the correct question word। Now first of all see here the definition, how and why are also question words, how और why ये जो दो चीजें हैं, how and why, these are also known as the question words, okay। So now in the next exercise we have to use how and why, okay। See, they inquire into an accident, action or a situation, for example how is the weather, तो how और why हम कब यूज करते हैं, जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्शन हो रही है, कोई सिचुएशन है, एट दैट टाइम वी यूज हाउ और व्हाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तुमको एग्जांपल क्या हुआ है, हाउ इज द वेदर, मतलब वेदर कैसा है हमको जानना है, राइट, सो हम क्या यूज करेंगे, हाउ। नेक्स्ट इज व्हाई इज शी लेट, तो अगेन वी हैव यूज्ड हियर व्हाई इज शी लेट, ओके, क्लियर लाइक दिस। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, मतलब हमको ब्रैकेट दिए हुए, वी हैव टू चूज, ओके। सी फर्स्ट इज हाउ और व्हाई इज योर मदर फीलिंग नाउ, तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट नंबर में, व्हाट विल राइट, वी विल सर्कल हाउ इज योर मदर फीलिंग नाउ, क्लियर। सी नेक्स्ट वन, हाउ और व्हाई आर यू ट्रैवलिंग टू गोवा, सो अगेन व्हाट वी विल डू, हाउ आर यू ट्रैवलिंग टू गोवा, मतलब तुम लोग गोवा कैसे जा रहे हो, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, हाउ और व्हाई इज द लिटिल बेबी क्राइंग, तो हम क्या लिखेंगे, हमको क्या जानना है कि जो बेबी है, व्हाई बेबी इज क्राइंग, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाई इज द बेबी क्राइंग, तो हमारा थर्ड आंसर क्या होगा, वी विल सर्कल व्हाई। नेक्स्ट इज हाउ और व्हाई डिड द हॉर्स जंप ओवर सच अ हाई फेंस, सो जो हॉर्स है उसने हाई जंप किया, हाउ डिड ही हाई जंप, सो फोर्थ नंबर हमारा क्या होगा, वी विल सर्कल हाउ। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, हाउ एंड व्हाई डजंट ही टेल द ट्रूथ टू द पुलिस, तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर अगेन क्या होगा, हमको क्या जानना है, व्हाट अ क्वेश्चन इज, व्हाई डजंट ही टेल द ट्रूथ टू द
police. Okay children, so clear up till here? Okay, so we were completed up till page number 67. So we will meet in the next lecture. Till that, bye bye. Thank you.